So everyone note down. In today's class, we will start relations and functions. Okay. So everyone, just pay attention. So we begin with relations first. Okay. What is a relation? Let us see in today's class. Okay. So I want everyone to pay attention here and also concentrate the basics which I'm explaining in the class, because without these basic concepts, you will not be able to understand this chapter relations. जो भी मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ इस बेसिक कंसेप्ट के बिना तुमको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान से एक बार नोट करना कि इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑर्डर पेयर। Now, what is the meaning of ordered pair in this topic relations? Representation of two components in first bracket separated by comma is called ordered pair, where this graphically it represents a point. So मतलब इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, where you know that the first component will represent x coordinate and the second component will represent y coordinate। बताने का जरूरत नहीं है, you want to notice ये क्लास 8 या 9 से तुम लोग पढ़ते हैं। So this is the meaning of ordered pair. Now see, ordered pair x comma y is not same as the ordered pair y comma x. Why? Because suppose if I say plot 2 comma 3, if I say plot 2 comma 3, see if I say plot 2 comma 3, 2 comma 3 is a point in the first quadrant. If I say plot 3 comma 2, this is also the point in the first quadrant, but it is some other point. But ये क्या है बताओ कि दूसरा point है। So we find that a point 2 comma 3 is not same as 3 comma 2, and that's why ordered pair x comma y is not equal to y comma x. Number 2. Now the question is, when two ordered pairs are equal, what is the condition for two ordered pair being equal? मतलब कंडीशन क्या है कि जिससे दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो। हम लोगों ने तो ये देख लिया कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2, 3 और 3, 2 इज व्हाट आर टू डिफरेंट पॉइंट्स इन प्ले। ठीक है, तो हम लोग अब ये कंडीशन डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि दो ऑर्डर पेयर्स किस कंडीशन में इक्वल होते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल? दे आर इक्वल इफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट and second component is equal to second. Okay, that is first component is equal to first and second component is equal to what? Second. तो किस condition मतलब under what condition two ordered pairs are equal? It is equal to when x1 equal to x2 and y1 is equal to y2. Now based on this concept you may get a question like this: 2x comma 3y is equal to -4 comma -6. Find the values of x and y। मतलब अगर मान लो ये लिखा रहेगा कि ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, तो फिर x और y के किन वैल्यूज के लिए, कौन से वैल्यूज के लिए ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे? इक्वल होने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, ये ना देखो, और y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। समझ में? तो अगर हम देखें इसके हिसाब से तो बाय कंपेयरिंग, सो वी गेट बाय कंपेयरिंग 2x is equal to -4 and 3y is equal to -6. So what is the value of x? -2. And what is the value of y? This is also equals to -2. तो यहां से हमने क्या निकाला? x का वैल्यू -2, y का वैल्यू भी -2 निकाला। Next. Now the second topic is Cartesian product of sets. Okay, what is Cartesian product of sets?
listen here everyone. Suppose we have got a set A in which the elements are, let's say, -1, 2. We have another set B in which the elements are, let's say, 2, 3. And suppose you are asked to find out A cross B. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब सपोज एक सेट है B दूसरा सेट है और मान लो बोला जाए फाइंड A क्रॉस B, तो ये A क्रॉस B क्या है, ध्यान रखना. See, A cross B is a set, number 1. What is A cross B? A cross B is a set. A cross B क्या बताओ तो? एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसा होगा बताओ तो? It will be ordered pair format, number 1. किस फॉर्मेट में होगा बताओ तो? उसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में होंगे. ठीक है. नंबर 2, इसका पहला कंपोनेंट किस सेट को बिलोंग करेगा? पहला कंपोनेंट विल बिलोंग टू सेट A and the second component will always belong to set B. Okay, because I'm asking you find A cross B. तो अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि A cross B निकालो तो A cross B का मतलब क्या है? अगर A एक नॉन एम्प्टी सेट है, B भी नॉन एम्प्टी सेट है. नॉन एम्प्टी मतलब जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स, मतलब जैसे खाली नहीं है, इसी के लिए इसको नॉन एम्प्टी बोलते हैं. एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी ना उसके अंदर. तो अगर A and B are two non empty sets, so what is the meaning of A cross B? A cross B is a set, okay, और you know that set को हम लोग हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट को हमेशा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट से यूज करके रिप्रेजेंट किया. ठीक है. अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा? इसके अंदर एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होगा. ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होगा. ठीक है. सच दैट the first component will belong to set A and the second component of this ordered pair will belong to set B. So can you tell me what will be the total number of ordered pairs which can be formed in A cross B? A cross B के अंदर टोटल कितने ordered pairs फॉर्म होंगे? तो ध्यान देने का मैं क्या करूंगा, पहला कंपोनेंट क्योंकि सेट A से लेना है तो मैंने एक ले लिया एलिमेंट -1 और मुझे दूसरा कंपोनेंट किस सेट से लेना है? सेट B से. अब मैं क्या करूंगा, देखो कैसे फॉर्म करूंगा. -1, 2, उसके बाद -1, 3, फिर then I will take the second component 2, 2 and 2, 3. तो देखो ध्यान से A क्रॉस B के अंदर कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म हुए बताओ तो? A क्रॉस B के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म हुए? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग यहां पे फॉर्म किया. एक बार यहां पे कॉपी करो, then I can erase this one and I can move ahead. Okay, just copy it. So I was here in this topic Cartesian product if you note down. So मैं क्या बोल रहा था Cartesian product of sets के बारे में. तो sets याद रखना चाहिए कि sets को हम लोग हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. So A is a non-empty set. Can you tell me in this non-empty set what is the total number of elements we have? What is the number of elements we have in set A? What is the number of elements? N मतलब number of elements we have in set B. So when I'm asking you A cross B, so A cross B is also a set. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट. इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसा होगा? देखो सेट A के अंदर एलिमेंट्स एक सिंगल कंपोनेंट के फॉर्म में. अभी मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, लेकिन A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स कैसा फॉर्म में होगा? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होगा. तो सच दैट के पहले फॉर्मेट पहले मैंने लिखा है कि इसके अंदर एलिमेंट कैसा फॉर्मेट में होगा. तो कैसा फॉर्मेट में होगा? ऑर्डर्ड पेयर. अब देखो इसमें पहला कंपोनेंट किस सेट को बिलोंग कर रहा है? Why? Because it is A cross B. अगर B cross A होता है तो पहला कंपोनेंट किसको बिलोंग करता है? सेट B को. और यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट B को, because it is A cross B. मतलब पहला कंपोनेंट सेट, जो पहला कंपोनेंट है वो A से आना चाहिए, जो दूसरा कंपोनेंट है वो B से आना चाहिए. तो A cross B के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होगा? देखो ध्यान से. तो मैंने पहला कंपोनेंट पहले ले लिया -1. अब मैं -1 को 2 के साथ और -1 को 3 के साथ और पेयर फॉर्म किया. Then 2, 2 and 2, 3. Is this okay everyone? So we find that the total number of elements in A cross B is 1, 2, 3 and 4. Now let us see like B cross A. तो अगर B cross A बोला जाए, so what is B cross A? Again B cross A is a set. Set of what? Set of elements in which format? Ordered pair format. Ordered pair format.
Now here the first component will belong to which set? Yes. And the second component will belong to which set? So as a result, if I choose the first element of set B, that is 2, and if I want to form ordered pair with an element of set A, so what will be the ordered pairs which can be formed? 2, -1 मतलब -1 को लेके 1 और 2 को लेकर के 1 ऑर्डर पेयर। फिर अगर मान लो मैं पहला कंपोनेंट 3 ले लेता हूं तो इससे कितने सारे ऑर्डर पेयर्स फॉर्म किया जा सकते हैं? 3, -1। क्लियर? अब देखो एक चीज ध्यान से नोट करो कि क्या A क्रॉस B के अंदर और B क्रॉस A के अंदर क्या नंबर ऑफ, देखो एलिमेंट्स क्या मुझे सेम दिख रहा है? देखो तो एलिमेंट सेम दिख रहा है क्या? सेम दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दिख रहा है, बट मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या एलिमेंट सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे सेम। मतलब A क्रॉस B is a set where B cross A is another set। मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या है बताओ तो अलग अलग सेट्स हैं, ये दोनों एक ही सेट नहीं होंगे। But again on the other hand, if I ask you what is the number of elements present in A cross B, then your answer is 4. What is the number of elements present in B cross A? It is also 4. And it is always equal to the number of elements in BA into the number of elements in B. Number of elements present in A into number of elements present in B. मतलब एक चीज ये बोला जा सकता है कि दोनों A क्रॉस, अगर मान लो A and B are two null empty sets, so the number of elements in A cross B and the number of elements in B cross A will be equal। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होगा लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। मतलब जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होगा बट एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। एंड दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू n of A into n of B। I hope it is clear to everyone what is A cross B and B cross A। So everyone please comment। Now see, now we'll see Cartesian product of three sets। Let us take a set A in which the elements are -1 and 1। Suppose you are asked to find out A cross A, and number 2 you are asked to find out A cross A। Let us see। अब एक बात बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल मी दिस? एनीवन हु कैन आंसर? बताओ तो। अगर मान लो एक सेट है in which the elements are -1, 1, if you find it difficult to write, okay, let me write set A once again। now tell me what is A cross A this। अच्छा ये बताओ पहले, अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि A क्रॉस A के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना? 4 होगा, 2 2 4। अब बताओ मुझे A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? ये ले लिया पहले एलिमेंट, ऑर्डर पे क्या क्या फॉर्म्स? All right, this is clear। you'll have total 4 elements। if I ask you what is A cross A, so everyone note down what will be A cross A। तो ध्यान देना पहले A cross A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और A के अंदर कितने एलिमेंट है? मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होगा पता है? 4 2 जा 8 एलिमेंट्स होगा। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने पहले एलिमेंट को पिक किया और अब हम यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। क्या बोला मैंने? ऑर्डर्ड पेयर नहीं, क्या बोला मैंने? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट? तीन कंपोनेंट्स का एक ऑर्डर, मतलब एक ये बनेगा, मतलब एक, मतलब इस तरह से x, y, z ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3। अब देखो कैसे फॉर्म करेंगे। मान लो हमने पहला कंपोनेंट ले लिया A क्रॉस A का, दैट इज -1, -1। अब हम ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1। then we have -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1,
I hope it is clear to everyone what is the meaning of ordered triplet and what is the meaning of Cartesian product of three sets. So you will just copy down these examples करिए. और अगर हम इससे देखें तो पहला एक्सरसाइज जो है रिलेशंस का वो कंप्लीट हो गया. अगर तुम रिलेशंस का पहले ऐसे अपने बुक पे पलट के देखोगे, आई एम श्योर दैट ईच एंड एवरी सम यू विल बी एबल टू. इट्स ऑल बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट. ओके, एक कॉपी करना पड़ेगा. अच्छा, one more thing, just before starting to the next topic, that is relations, let me ask you one thing. I hope you all remember the meaning of set and subset. Everyone, I hope you all remember the meaning of set and subset. Okay, let me explain you once again. मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान देकर. सेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट सबको याद है क्या होता है? सपोज मान लो एक सेट है having elements 1 and 2. B is another set in which the elements are 1, 2, 3. And let's say D is another set in which the elements are 1, 2, 3 once again. Okay, suppose if I say A is a subset of B. Now what is the meaning of A is a subset of B? A is a subset of B means all the elements of set A, all the elements of A are present in B. देखो मैंने all the elements of A are present in B लिखा है. मैंने ये नहीं लिखा कि B में क्या होगा. मैंने सिर्फ ये बोला है कि A का सारा एलिमेंट, सेट A का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए. सो एक बात बताओ, क्या A का सारा एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है? तो हम A is a subset of B लिख सकते हैं. This is a symbol of subset. ठीक है. अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A is a subset of D? Can I write? Yes. अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ A is a subset of A? True or false? Yes, sir. How is it? How it is false? क्या A का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? All the elements of A are present in B. So same way all the elements of A are present in A. क्या false है? क्या ये स्टेटमेंट false है? Obviously A का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट होगा ही, तो ये false कैसे हुआ? अब एक बात बताओ, B is a subset of D. True or false? Because B का सारा एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है? D में प्रेजेंट है. I hope you are getting the things are getting clear. तो ये सारा जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये क्या है बताओ तो? सबसेट का सिंबॉलिक नोटेशन. ठीक है. अब देखो प्रॉपर सेट. प्रॉपर सेट क्या होता है? लिसन, लिसन वेरी केयरफुली. देखो प्रॉपर सेट में क्या होता है? A is a subset of B. True or false? And number of elements of A is not equal to the number of elements present in B. True or false? True. A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं क्या B के अंदर उतने एलिमेंट्स के बराबर है? नहीं, फॉल्स. तो एक बात बताओ, किस सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं? B. इस केस में हम ये लिख सकते हैं A is a proper subset of B. Is this clear? A is a proper subset of B. समझ में आया तो बात? ओके, तो एक काम करो तुम लोग, ये फटाफट एग्जांपल को कॉपी करो. So according to the definition of proper subset, okay. So can you tell me one thing? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि A is a proper subset of A? क्या मैं बोल सकता हूँ A is a proper subset of A? नहीं बोल सकता. Why? Because A का सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या ये वाला सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं. So लोग A is a proper subset of A कभी भी नहीं लिख सकते. Okay, everyone note down. बट यहाँ पे कौन-कौन से सेट के पेज, मतलब तीन सेट है A, B और T. किस-किस में प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज कर सकते हैं? A is a proper subset of D. Yes. A is a proper subset of D. True. B is a proper subset of D. No. I hope the meaning is clear now. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस. तो रिलेशंस क्या होता है? लेट्स सी.
Now see, so note down, suppose if A and B are non-empty set, ठीक है, मतलब खाली नहीं, A में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है और B में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, so A and B are non-empty set, then R is a relation in A to B, then R is a relation in A to B is also a then R is a relation in A to B, मतलब A to B में क्या रिलेशन है, satisfying the given condition। तो ध्यान से नोट करना क्या है, there are two non-empty sets A and B, then R is a relation in A to B। What is the meaning of R is a relation in A to B? R is a relation in A to B satisfying the given condition, okay? तो ये given condition क्या है and R is a relation in A to B क्या है, एक बार ध्यान से। Now let us say for example A is a set in which the elements are 1, 2, 3, 4, let's say. B is another set in which the elements are 4, 9, 16, 25, 36. R is a relation x, y where x is equal to y का square, ठीक है, or we can say just a minute, let me say x square is equal to y, okay, x square is equal to y and R is a relation in A to B। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से एक बार देखो, तो R is a relation in A to B का मतलब वो ये हुआ कि सेट A के एलिमेंट्स को मुझे B से रिलेट करना है, सेट A के एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, B से रिलेट करना है। मैंने कौन से टर्म यूज किया बताओ तो, A को B से रिलेट करना है, तो रिलेशन मतलब इस पर्टिकुलर दो सेट के एलिमेंट्स को मुझे रिलेट करना है बाय अ सर्टेन कंडीशन। एंड व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ये है कि x के स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, मतलब मैं दो फैमिलीज के मेंबर्स को के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना चाह रहा हूं कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, x squared is equal to y, x is a wife of y, x is a brother of y, x is elder brother of y, ऐसा कुछ भी हो सकता है, समझ में आया तो बात। तो हम लोग जो भी वहां पे रिलेशन होगा, हम लोग वहां पे दो पर्टिकुलर सेट के बीच का मेंबर्स को रिलेट करेंगे बाय द गिवन रिलेशन, बाय द गिवन कंडीशन। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस रिलेशन के अंदर लिख देंगे, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस रिलेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज R is a relation in A to B का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी। R is a relation in A to B, मतलब A to B का मतलब क्या होगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब ये हुआ कि जो पहला कंपोनेंट है वो सेट A को बिलोंग करेगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, मतलब A to B का मतलब क्या है, मैं पहला कंपोनेंट जो है वो A से लेके चेक करूंगा कि सेकंड कंपोनेंट B का कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है, फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का विद द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेट B का कौन-कौन से रिलेशन, मतलब सॉरी इस रिलेशन को कौन-कौन से कंपोनेंट सैटिस्फाई कर, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट must come from set A, second component must come from set B, और ये जो है रिलेशन को सैटिस्फाई कौन-कौन से एलिमेंट्स कर रहे हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो ध्यान से एक बार नोट करें। अगर हम x का वैल्यू 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर, क्या y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कहीं भी है y के अंदर, देखो तो नहीं। अब देखते हैं लेट्स से सेकंड एलिमेंट, अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 यहां पे बिलोंग करते हैं, मतलब यहां पे देख रहे हैं कि 2 और 4 रिलेटेड है, 2 और 4 क्या बताओ तो रिलेट हो रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप से रिलेट हो रहा है बताओ तो, कौन से रिलेशनशिप इन लोग पास कर जा रहे हैं, किस रिलेशनशिप को इन लोग पास कर जा रहे हैं बताओ तो,
इस रिलेशनशिप को पास कर रहे हैं क्या कि x का स्क्वायर किसके बराबर है y के बराबर है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किसके बराबर है, समझ में आया बात। नेक्स्ट अब बताओ यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 3 ले ले 3 ले ले तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या y का वैल्यू यहाँ 9 बिलोंग कर रहा है। मतलब यहाँ पे कौन से दो कंपोनेंट्स रिलेट कर रहे हैं इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को पास कर रहे हैं, बताओ तो 3, 9 उसके बाद 4, 16 ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। समझा। सो व्हाट इज अ रिलेशन, a relation is a set containing elements in ordered pair format satisfying the given relationship. If a relation is in A to B, what do you mean by this? अगर रिलेशन A to B है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहला कंपोनेंट है वो सेट A को बिलोंग करेगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेट B को बिलोंग करेगा। और देख रहे हैं कि सेट A का और सेट B का कौन से दो एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर रिलेशन को सैटिस्फाई करेंगे। A to B में तो देखो A to B तो बहुत सारा हो सकता है, A to B बहुत सारा हो सकता है, मतलब 1,4 भी हो सकता है, 1,9, 1,16, 1,25, 1,36, 2,4, 2,9, लेकिन इन सब में से कौन सा जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, 2,4 सैटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया मेरे बात, 3,9 सैटिस्फाई कर रहा है, 4,16 सैटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे रिलेशन R A to B है, A to B का मतलब ये हुआ, मतलब A to B का मतलब हुआ 1,4, 1,9, 1,16 ऐसे बहुत सारे, 2,4, 2,9, 2,16 बहुत सारे, लेकिन इन सब में से कौन-कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, समझ में? नहीं तब तो रिलेशन ही नहीं होता, रिलेशन मतलब तो कुछ तो रिलेशन होगा ही, कुछ कंडीशन तो होगा ही, वहां तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगा। ओके अब देखो नेक्स्ट, अभी बाकी नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ R। एक रिलेशन का डोमेन का मतलब क्या होता है, सुनना है, डोमेन का मतलब होता है रिलेशन R का जो पहला कंपोनेंट है उसको एक सेट के अंदर लिखो, दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट है उसको एक सेट के अंदर लिखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज रेंज। जो सेकंड कंपोनेंट है रिलेशन R का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको एक सेट के अंदर लिखो, उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। सो व्हाट इज रेंज, 4,9, 16। थर्ड पॉइंट कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब है सेकंड कंपोनेंट इज y and y belongs to which relation, sorry which set, y belongs to set B। तो जो पूरा सेट B है, entire set B is called codomain, entire set B is called what, codomain। और तुमको बोला जाए कि इसका एरो डायग्राम क्या है, तो सेट A के अंदर यहां पे सारे एलिमेंट्स को लिख दो, सेट B का सारे एलिमेंट्स लिख देते, और कौन कौन से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 3, 9, 4, 16। तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। स्टार्ट। Now suppose let's say take the second example where A is a set in which the elements are -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. You have another set B in which the elements are -4, 2, 1, 3, 5 and 7. Suppose you have a relation R x comma y where x minus y is equal to 0 and R is a relation in A to B. So what are the things you have to just listen? Find what is R. Number 2, finds domain. Number 3, find range. Number 4, what is codomain? And number 5, arrow diagram. Start.
मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म में निकालो। टैबुलर फॉर्म मतलब यू नो व्हाट इज टैबुलर फॉर्म? टैबुलर फॉर्म मींस राइटिंग द एलिमेंट्स। ओके, हम लोग को एलिमेंट्स को यहां रिप्रेजेंट करना है। तो क्या क्या होगा, एक बार फटाफट देखिए। ये सारा समझ मतलब सारा सब पार्ट करके देखो कौन से लिखे क्या। सो एवरीवन नोट डाउन रिलेशन आर के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा बताओ। व्हाट इज x minus y equal to 0, क्या क्या एलिमेंट्स होगा बताओ। 2, अच्छा 2, 2, उसके बाद 3, 3, 1, 1 और कुछ होगा आर के अंदर। आर के अंदर और भी कुछ होगा मतलब सीधा सा बात है। x minus y equal to 0 मतलब क्या होगा, x equal to y। तो कौन कौन से में x और y बराबर है बस उतना ही तो देखना है। अगर x और y बराबर होगा तभी तो x minus y equal to 0 होगा, लेकिन अब नेक्स्ट डोमेन क्या होगा, 2, 3, 1। What is range? Range is also 2, 3, 1. But can you tell me what is codomain? What is codomain of this relation R? Sir, B. Set तो y B. जो सेकंड कंपोनेंट है वो किस सेट को बिलोंग कर रहा है? A to B मतलब सेकंड कंपोनेंट। और एरो डायग्राम क्या होगा, बस A और B के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख करके उसके बाद देखो कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है। This is clear everyone? कॉपी करना है। Okay, just tell me one thing everyone. Relation R in A to B का मतलब तो clear हो गया। But what is the meaning of this line? R in A. What is the meaning of R in A? Anyone can explain? R in A to B का मतलब समझ में आया तुम लोगों को क्या होता है? R in A to B का मतलब ये हुआ कि रिलेशन R के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो सेट A को बिलोंग करेगा, दूसरा कंपोनेंट सेट B को बिलोंग करेगा एंड सैटिस्फाइंग द गिवन रिलेशनशिप। वो तो ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R is R in a relation A? R in A, what is the meaning of this? A to A. एब्सोल्युटली करेक्ट। R in A का मतलब ये हुआ कि जो पहला कंपोनेंट है वो भी सेट A को बिलोंग करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो भी सेट A को बिलोंग करेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R in A? R in A का मतलब ये हुआ कि इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ओके, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A to A। ऑलराइट, तो इसमें कंफ्यूज मत हो कि दूसरा सेट कहां पे है। अब एक बार ध्यान देना, एवरीवन डू सम नंबर 1 of 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का नंबर 1 and number 6, 1, 6 and 7 do it right now। exercise 2.2 का 1, 6 and 7 कौन सा बोला, 1, 6 and 7 स्टार्ट। So the first question is number 1. You have set A in which the elements are 1, 2, 3 and so on till 40. You have a relation R x, y where 3x minus y is equal to 0. x and y both belongs to A, वो तो पता ही A को बिलोंग करेगा और हम लोग को डोमेन कोडोमेन एंड रेंज निकालना। तो 3x minus y equal to y, sorry 3x minus y equal to 0 का मतलब क्या होगा? What is the meaning of 3x minus y equal to 0? It means y equal to 3 times x. It means y is equal to how much? 3 times x. So the very simple way to find out is, let us take the element from set A, which is 1. Now if I take the value of x equals to 1, what is the value of y we will get? तो क्या y मतलब तुमको पता है कि R is a relation in A का मतलब क्या होगा? x and y both belongs to set A
है कि नहीं? तो एक बात बताओ, क्या 1,3 मतलब क्या 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? यस, मतलब 1,3 will belong to relation R. Let us take the value of x equals to 2 now. What will be the value of y? 6. क्या 6 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है? It's from 1 to 14 all natural numbers. So 2, 6, because if I take 2, 6, this particular condition is getting satisfied. Next, if I take x equals to 3, what is the value of y we are getting? 9. If I take 4, x equals to 4, what is the value of y we are getting? 12. 3 4 are 12. Then we have 5. What is the value of y we are getting? 15. क्या 15 belong कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, because the maximum value of this 14 and minimum is 1. तो कितने सारे ordered pairs होंगे? 1 2 3 4. अब तुमसे ये पूछा जाए what is the domain of R? So what will be the answer? 1 2 3 4. Is 1 2 3 and 4. What is the range of this relation R? 3 6 9 12. What is codomain? कोडोमेन इज सेट ए. एरो डायग्राम बना के ए टू ए और उसके बाद देखो कि कौन-कौन से दो एलिमेंट्स एरो डायग्राम बनाना नहीं है. ठीक है, that's what's simplified. तो 1 के बाद नेक्स्ट है 6 एंड 7. हो जाएगा नहीं? समझ में आया तुम लोगों को? हो जाएगा ना? खुद ही ट्राई कर लेना तुम लोग. ओके, now what you can do is exercise 2.1 and 2.2 you can complete. 2.3 से फंक्शन स्टार्ट है. ठीक है, एक क्लास 2 क्लास लगेगा फंक्शंस में और कंप्लीट हो जाएगा फंक्शंस. सो आज हम ये 2 एक्सरसाइज करके इतना ही रहने देते हैं. तुम लोग ये 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर लो.